اب بات کریں گے مہنگائی کی، تو مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کے لیے حکومت کا عوام کو ایک اور جھٹکا۔ بجلی اور گیس مزید مہنگی کر دی۔ بجلی کی فی یونٹ پر فروری اور مارچ کے لیے پاور ہولڈنگ لیوی 43 پیسے عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کے طوفان کے باوجود وفاقی حکومت نے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فی یونٹ بجلی پر 3 روپے 82 پیسے لیوی عائد کرنے کی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ فروری مارچ کے لیے پاور ہولڈنگ لیوی 43 پیسے عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ مارچ سے جون تک 3 روپے 39 پیسے اضافی لیوی شامل کی جائے گی۔ ای سی سی نے قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منظوری سے عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اور شرط پوری ہو گئی۔ گیس کی نئی قیمت 1 جنوری سے 30 جون تک نافذ العمل رہے گی۔ گیس کی قیمت میں اضافہ 16.6 سے 124% تک کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، آئین 90 روز میں الیکشن کا کہتا ہے، یہاں الیکشن کے لیے پیسے نہ ہونے کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں بڑے چوروں کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے، مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں، طاقتور طبقے کو قانون کے نیچے لائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ویڈیو لنک خطاب، پھر سے الیکشن کی بات، بولے آئین 90 روز میں انتخابات کا کہتا ہے، یہاں سب مل کر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 90 دن میں الیکشن نہیں، اور بہانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، سوچیں، کہتے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے، یہ تو ڈائریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا جمہوریت کے لیے قانون کی حکمرانی لازم ہے۔ پاکستان میں طاقتور چوری کر کے این آر او لیتا ہے، یہاں تو مافیا کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ کوئی بھی ملک جب تک انصاف قائم نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی۔ جب تک رول آف لا نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں آتی۔ ڈیموکریسی آپ جب رول آف لا کا مطلب ہی ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی ہوتی وہ ہے جو قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کر دیتی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا حکمران اپنی نمائش میں مصروف ہیں، پی ٹی آئی دور کے فلاحی منصوبے جان بوجھ کر بند کیے جا رہے ہیں۔ جہاں غریب کی قدر نہ ہو وہاں اللہ کی برکت نہیں آتی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کپتان پر کڑی تنقید، کہا ان کا دور سلیکٹڈ کا دور تھا جس کے نتیجے میں ووٹ کے حق پر ڈاکہ مارا گیا اور معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ ملک کی سلامتی اور ترقی آئینی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہی ہے۔ اسلام آباد میں شہدائے جمہوریت کی یاد میں تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ موجودہ امتحان میں ناکام ہوئے تو جمہوریت اور عوام کا نقصان ہوگا۔ مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے، اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم تاریخ کے سنگین ترین سیاسی اور معاشی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب کو کم از کم قومی ایجنڈے پر متحد ہونا پڑے گا اور تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ معاشی بحران، سیاسی بحران، سماجی بحران سے ہم گزر رہے ہیں۔ شاید تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا بڑا کرائسس سے نہیں گزرے ہیں، اور یہی وقت ہے کہ سب کو ایک منیمل کامن ایجنڈا پہ اگری ہونا پڑے گا، کم از کم ماننا پڑے گا کہ کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک و قوم کو 73 کا متفق کا آئین دیا۔ آئین پاکستان شہریوں کے حقوق، وفاق اور اکائیوں کے اتحاد کا ضامن ہے۔ عمران خان کے خطاب پر اپنے رد عمل میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب کو یقین ہے کہ ان کے حامی ذہنی معذور ہیں۔ عمران خان کا اقتدار میں آنا ہی رول آف لا کی خلاف ورزی تھا۔ ان کا دور حکومت رول آف لا نہیں، رول آف جنگل تھا۔ اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ایک دن گالی اگلے دن معافی عمران کی سیاست ہے، چاہے وہ عدالت، امریکہ یا ادارے ہوں۔ آپ جیسے فورن ایجنٹ، چور، جھوٹے، بہروپیے اور منی لانڈرنگ سے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران صاحب ایسی باتیں کر کے اپنے ووٹرز کی توہین کرتے ہیں۔ کیا تم نے رول آف لا کا سہارا لے کر سپیکر، ڈپٹی سپیکر، گورنر اور صدر سے آئین شکنی کرائی تھی؟
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुसलसल 4 साल तक मदीना की रियासत के नाम पर अवाम को धोखा देते रहे। इन्होंने 4 साल के दौरे हुकूमत में कौम को गुमराह किया, हल्फ की पासदारी नहीं की। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि इमरान खान पहले कहते थे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है, अब ये कहते हैं कि अमेरिकी साजिश नहीं थी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कौम को गुमराह किया है। विफाकी हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें। पाकिस्तान के साथ है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की नंबर 1 प्रायोरिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से पब्लिक को रिलीफ दिया जा सकता है। शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क में खराब मौशी सूरत-ए-हाल का एहतराफ करते हुए कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। किसी को मसनूई महंगाई की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात कब होंगे, तारीख पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का वफ्द मंगल को गवर्नर से मुलाकात करेगा। मरासरा लिख दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का 90 रोज में पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम बैठक, अदालती फैसले पर गौर। इत्तेफाक हुआ कि इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए गवर्नर पंजाब से मुलाकात की जाएगी। मियां बलीगुर रहमान को खत भी लिख दिया गया। मरासले के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी लॉ गवर्नर पंजाब से मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी ब्रीफ किया जाएगा ताकि आइंदा का लाहे अमल तय किया जा सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे में साफ और शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी मिली है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। पंजाब असेंबली में इंतखाबात की तारीख न देने पर लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई, जिसमें गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। बोले हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी, हमारे इस्तीफे जल्द कबूल किए, इलेक्शन कराने को भी तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रही है। कोई इज्जत ही नहीं छोड़ रही है लोग। इस वक्त पाकिस्तान का जो बहरान है, एक तरफ तो वो मुआशी बहरान है और दूसरी तरफ हमारा एक इस वक्त मार्केटिंग का बहरान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि वो इलेक्शन कराएगा, वो कह रहे जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि PDM जो है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इतनी एम्बैरसमेंट पाकिस्तान को शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की वजह से हो रही है दुनिया में। IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में शौकत तरीन की ऑडियो रियासत से बगावत करार दे दी गई। विफाकी हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की दरखास्त की थी। तफसीलात खुर्रम मलिक की इस रिपोर्ट में। कप्तान का एक और अहम खिलाड़ी मुश्किल में फंस गया। मुल्की माशी सूरत हाल पर तनकीद करने वाले शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग। FIA के साइबर क्राइम इस्लामाबाद में रावलपिंडी के रहायशी अरशद महमूद ने साबिक वजीर खजाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR पीका एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें दफा 124A और PPC 505 शामिल हैं। सोशल मीडिया पर शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा से फोन पर बात कर रहे थे। मुबैना ऑडियो कॉल के दौरान शौकत तरीन दोनों सूबाई वज़रा को IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने की तरगीब दे रहे थे। वफाकी हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की थी। दर्ज मुकदमे के मुताबिक PTI रहनुमा को मुबैना ऑडियो लीक पर तलबी का समन जारी किया गया था और सवालात भी पूछे गए थे, लेकिन वो तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। इसके बाद मुकदमा का इंदराज किया गया। कैमरामैन अरशाद सती के साथ खुर्रम मलिक, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने खातून जज को धमकी दिए जाने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की सदा मुस्तरद करते हुए उनकी आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंजोथा और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत इजाजत नहीं दे रही कि इस्लामाबाद आएं। डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज करते हुए कहा कि अपने ही अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लगाकर इमरान खान पेश नहीं हो रहे। शौकत खानम अस्पताल तो कैंसर अस्पताल है, इमरान खान का मसला अलग है। इमरान खान को फ्रैक्चर के बायस सिर्फ सोजिश है। अदालत ने इमरान खान को सीढ़ियां चढ़ कर आने का नहीं कहा, वो कचहरी के बाहर आए, उनकी हाजिरी लगाई जा सकती है। इमरान खान के जमानती मचल के मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की भी मुखालफत की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए केस पर मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कातिल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्पेशल जेआईटी का कीनिया का दौरा बेसूद रहा। स्पेशल जेआईटी जाने से पहले मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। कीनिया पर इल्ज़ाम आयद करने के बजाय अपने गिरबान में झांके किसी ने अरशद शरीफ कातिल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जानबूझकर पब्लिक की है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने से अब तक कुछ ऐसा हुआ कि कीनिया अब ताउन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कातिल अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान सरबराह जेआईटी ने इंकिशाफ किया कि अरशद शरीफ कातिल के हवाले से कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। अरशद शरीफ के मोबाइल और आईपैड कीनिया के आईटी डिपार्टमेंट के पास है। अरशद शरीफ का बाकी सामान मौसूल हो चुका है। कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, कहानियां ना सुनाए, आपको शायद बात समझ नहीं आ रही। शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आएगी। मवाद क्या जमा किया है, जेआईटी के अरकान कहाँ है, क्या तफ्तीशी टीम का काम नहीं है पेश होना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कीनिया ने अरशद शरीफ कातिल की तहकीकात में ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत जानना चाहती है कि स्पेशल जेआईटी को अब तक क्या मिला है। स्पेशल जेआईटी आइंदा क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी। अरशद शरीफ कातिल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट किसने पब्लिक की, पता करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्विस था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दफ्तर खारजा को केनियन वजीर खारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई। यकीन दहानी के बावजूद चाय वकुआ पर स्पेशल जेआईटी को क्यों जाने नहीं दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अरशद शरीफ कातिल केस के 3 जाविये हैं, जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, अदालत के साथ खेल ना खेलें, पहला मरहला तो यही था जो मुकम्मल ना हो सका। क्या जेआईटी कीनिया और यूएई में तफरी करने गई थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों मदद नहीं ली जा रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जेआईटी को खुद देखना होगा कि आगे कैसे चलना है। अरशद शरीफ के अखराजात कौन और क्यों बर्दाश्त कर रहा था। पाकिस्तानी सफारत खाना भी नैरोबी में वकला और सहाफियों से मदद दे। अरशद शरीफ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफी थे। कीनिया ने क्या तहकीकात की हैं, रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें। एक माह का कहते हैं, जो करना है करें, लेकिन हकाइक तक पहुँचे। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा है कि हड़ताल करने वाले वकला को लाइसेंस खत्म कर देने चाहिए और ऐसे जजेस को भी हटाना चाहिए जो ऑर्डर में लिख रहे हैं वकला हड़ताल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद गैस चोरी केस की समाअत हुई। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में वकला के 2 से 3 बार हड़ताल के बाइस पेश न होने का तस्करा हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वकला कैसे हड़ताल कर सकते हैं, ऐसे वकीलों का लाइसेंस खत्म करना चाहिए और ऐसे जजेस को भी हटाना चाहिए जो ऑर्डर में लिख रहे हैं कि वकला हड़ताल पर हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वकला अपने बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट पर खुद ही अमल नहीं करते। क्या अदालत वकील को घर से उठा कर लाए? जो चाहता है मर्जी से हड़ताल करता है, ऐसे निज़ाम इंसाफ को फिर बंद कर दें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हर आदमी अपना काम करे तो मुल्क का सिस्टम बेहतर हो सकता है। हम अदालत में आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, इंसाफ ऊपर वाला करता है। दौरान समाअत इंडस्ट्री के वकील ने कहा कि वकील की गलती है तो सजा मुवक्किल को नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने MS पंजाब इंडस्ट्री फैसलाबाद की जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज कर